உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். परलोक देवने अच्छा खाना पीना भी खिला रहे हैं आपका मालिक, आप लोग खाओ ये न पियो, ऐसा जल रहा है, लेकिन वो पश्चिम नहीं होता है, इस तरफ भी जा नहीं सकता है, इधर भी जा नहीं सकता है, पीछे फिर उनका दल आ रहा है, आगे समुद्र है, हमको जंगल में सत्यानाश करने के लिए, हमको मारने के लिए आ रहे हैं। प्रभु दया कीजिए हमको। समुद्र से 2 भाग हो गया। உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய அளவிடப்படாத கிருபைகளுக்காக, கர்த்தர் எங்களை நடத்தி வருகிற விதங்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். கர்த்தாவே, கடந்து சென்ற மாதம் முழுவதும் இந்த ஆண்டிலே கர்த்தர் கூட இருந்தீர். 2வது மாதத்தின் இந்த நாளிலும் நாங்கள் ஒருமித்து கூடவும், ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லவும், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கவும் கர்த்தர் கிருபை செய்கிறீர். உம்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம். இந்த இடத்திலே துதித்து பாடி உம்மை ஸ்தோத்தரித்து, ஆண்டவரே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கவும், தொடர்ந்து எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கவும் ஆண்டவர் கிருபை செய்கிறீர். இந்த திருப்பணியில் ஈடுபட போகிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பயன்படுத்தவும், தகுதிப்படுத்தவும், நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு நீர் போதிக்கவும், அதை நாங்கள் எங்கள் மக்களுக்கு சொல்லவும் கர்த்தர் அருள் செய்யும். அவைகள் ஜீவ வார்த்தைகளாக ஆண்டவரே இந்த மக்களுக்கு சென்று சேர கர்த்தர் அனுகிரகம் தார். தூய ஆவியுடைய துணையும் வழிநடத்துதலும் தொடர்ந்து எங்களோடு இருக்கட்டும். இந்த பாடல் வேளையும் எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து தார். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியை கேட்கிறோம் ஜெபங்கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். परलोक देवने பராக்கிரமம் உள்ளவரே, பரலோக தேவனே, பராக்கிரமம் உள்ளவரே, அகிலத்தை ஆள்பவரே, உம்மாலாகாதது எதுவும் இல்ல. சொல்லுங்க, இந்த அகிலத்தை ஆள்பவரே, உம்மாலாகாதது எதுவும் இல்ல. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்ல தேவனே. லிஃப்ட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், கரங்களை உயர்த்தி, எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வ வல்ல தேவனே, உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். இயேசுவே, உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். நீரங்களை காண்கிறவர் எல்ரோயி, எல்ரோயி, என்னை கண்ட தெய்வமே. இயேசுவே, எல்ரோயி, எல்ரோயி, எங்களை காண்பவரே, என்னை கண்ட தெய்வமே. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம்.
பார்த்து கொள்வீர். சொல்லுங்க, யெகோவா நீரே எல்லாமே நீர் பார்த்து கொள்வீர். உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். எங்கள் இயேசுவே உம்மை உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज ये सुबह वक्त प्रभु का वचन का द्वारा आपका मालिक जो बात बोल रहे थे उस बातों को मैं आपको हिंदी में बताने के लिए मैं चाहता हूँ। खास करके जो मूसा के बारे में, मूसा का इतिहास मूसा कैसा आया, अपना लोग कैसे छुड़ाया, किस प्रकार परमेश्वर ने उसको मुलाकात किया, इसी प्रकार ने इतिहास को आपका मालिक ने अच्छा तरफ से ए टू जेड तक, शुरू से आखिरी तक अच्छा से बताया है। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन प्रभु का वचन के द्वारा मैं उस बातों को थोड़ा करके मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए थोड़ा समय है, आपको मैं 10-15 मिनट का पहले मैं आपको कदम कर दूंगा। हालेलुया। ठीक है, अभी एक वचन मैं पढ़ता हूँ, निर्गमन का 3 अध्याय का और 2 और 3 और 4 मैं पढ़ता हूँ। शायद आप लोगों के पास एक नया नियम न्यू टेस्टमेंट में आपको दिया था, वहाँ पर नहीं होगा ये जो वचन, ये पढ़ा बाइबल जो है उसमें मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर मोबाइल में हिंदी बाइबल ऐप है तो उसमें आप सर्च करके आप देख सकते हैं। निर्गमन का 3 अध्याय है और 2 और 3 और 4 को मैं आपको पढ़ता हूँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कठिले झाड़ के बीच आग के लौ में उसके दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े दर्शन आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों जल नहीं रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मोड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के पीछे उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन में आप पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलाम होकर उस राजा उनको चलाया था। जैसे आप लोग अभी यहाँ पर ईटा सब बना रहे हैं, उसी प्रकार जो फिरौन, जो इजिप्ट का जो राजा फिरौन था, वो अपना सारे लोगों को पूरा गुलाम होकर सारे पूरा बहुत काम करवाया। लेकिन आपका मालिक तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम पर आपको टूटी देते हैं, टाइम पर आपको समाप्त करते हैं, अच्छा खाना पीना भी खिला रहे हैं आपका मालिक ना। लेकिन जो फिरौन का राजा, जो इजिप्ट का राजा फिरौन जो था, वो ईटा बनाने के लिए इतना दिन रात लोगों को दबा 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 कर, हमको इतना ईटा जरूर चाहिए, आप लोग खाओ या न पियो, कुछ भी न करने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमको क्या चाहिए,
ईटा जरूरत है। इतना दबा दबा कर उन लोग ने ऐसे काम को करवाया, लेकिन जो लोग गुलाम में थे उन लोग प्रभु को और पुकारने लगे, ये प्रभु कब हमको छुड़ाएगा? इस प्रकार इस मिस्र के हाथों से कब हमको छुड़ाएगा प्रभु? इसी प्रकार प्रभु और चिल्ला 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 कर पुकारने लगे। परमेश्वर के प्यारे लोग, प्रभु के पास उस प्रार्थना चला गया, उनका प्रार्थना गया, प्रभु ने सुना, मेरे बच्चे मैं आपको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने अपना मन में एक निर्णय ले लिया, कैसा भी हो मेरा लोगों को छुड़ाना है। उस समय में मूसा कहाँ पर है? जो जंगल में अपना सास का जो पेड़ पकड़ी चरा रहा है। पहले कहाँ था? वो मिस्र देश में वो पाला किया था, मिस्र देश में था। मिस्र देश वाले जो एजुकेशन था वो पूरा पढ़ाई को वो खत्म किया। मिस्र देश का जो फिर उनका राजा का बेटा का एजुकेशन था, पूरा सब कुछ पढ़ा किया, हो गया। फिर कुछ काम का वास्ते वो जंगल में भागना पड़ा। वो सब मैं आपको बताने से समय नहीं पूरेगा। जंगल में भागना पड़ा। जंगल में जाके वो क्या करने लगा? वो कुछ अपना कामों को करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भेड़ बकरी को देखा। उस भेड़ बकरी चराने वालों को मदद किया। उस प्रकार लोगों से उन लोग शादी कराया। शादी करने के बाद उन लोग क्या सोचा? फिर 40 साल के बाद मूसा को बच्चा सब हो गया। उसके बाद अभी यहोवा ने बुला रहा है, जाओ जाओ अपना लोगों को छुड़ाने के लिए मैं आपको बुला रहा हूं। उस पर कैसा बुलाया? एक जंगली का घाटा का झाड़ ऐसा जल रहा है, लेकिन वो पश्चिम नहीं होता है। वही मैं आपको अच्छन को बढ़ा था। जंगल का घाटा का झाड़ ऐसा जल रहा है, लेकिन पश्चिम नहीं हो रहा है। इस प्रकार आश्चर्य के कामों को मैं देखना करके पास में जा रहा है, लेकिन वहां पर यहोवा का आवाज सुनाई दे रहा है, ये मूसा मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैं आपको भेज रहा हूं, आप जाओ। उसने बोला, मैं बोल नहीं सकता हूं। वो मिस्री लोग का भाषा मैं सब कुछ भूल गया हूं। वो एजुकेशन पढ़ के कुछ फायदा नहीं, कुछ काम में नहीं आता। अभी मैं अभी भेड़ बकरी चराने के कारण, भेड़ बकरी चराने वाला कैसा बात करता है? अभी भेड़ बकरी के साथ कैसा बात करता है? हे ऐसा बोल बोल के उनका इजिप्ट जो पढ़ाई किया था पूरा भाषा सब भूल गया। अभी भेड़ बकरी के पास उनका आने लगा। इसलिए प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मेरे से नहीं होगा, मेरा मुंह से शब्द नहीं निकलता है। यहोवा ने बोला, मुंह को सृष्टि किया, मैं सृष्टि किया हूं। मैं आपको बोलने के लिए मैं सामर्थ्य दूंगा। लेकिन वो ने बोला, नहीं प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, आपका भैया एक आरोन है, मैं आपके लिए वो भेजूंगा। आपके लिए एक मुंह होकर वो रहेगा। अब जो कुछ बोलना है तो इनको बोलिए, वो आपको बताएगा। और मैं भी इनको बोलना है तो इनको बोलेगा। सब कुछ कैसा भी हो, मैं मुंह होकर रहेगा, मैं आपको चलाएगा। कैसा भी हो मेरे लोगों को छुड़ा कर ले आना है।
परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु का इच्छा यही है। उसी प्रकार छुड़ा छुड़ा के ले आया। थोड़ा दूर आने के बाद जंगल रास्ता में जाने से 3 दिन में कानान में प्रवेश कर सकता। निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन में देखने से 3 दिन में यात्रा करने वाला उस यात्रा को परमेश्वर ने 40 दिन करवाया। 40 दिन करवाया। वो जंगल के मार्ग में, समुद्र के मार्ग में अपना लोगों को घुमा कर कई बातों को सिखा कर परमेश्वर उनको ले गया। लेकिन पहला मिस्र देश से उन लोग बाहर आते वक्त एक घटना हुआ था। क्या घटना हुआ था? उसमें अभी शहर से वो बाहर आ गया। आने के बाद क्या हुआ? अभी बीच में समुद्र है। समुद्र को पार करके नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा विपत्ति में बढ़ गए हैं। अभी मूसा को सारे लोग ठान रहे हैं, हम इजिप्त उस फिरौन के राजा का साथ हम गुलाम होकर रहने से भी अच्छा होता था। वो कितना करे, ईटा करने के लिए, बनाने के लिए बोलते थे, कोई बात नहीं था। कैसा भी हो, हम उधर ही मर जाने से अच्छा होते थे। क्यों हमको इस जंगल में लेकर आया? इस समुद्र में मराने के लिए, हमको मार डालने के लिए लेकर आया क्या? क्यों लेकर आया? इसे कुड़कुड़ाने लगे लोग। अपने दास मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने यहोवा से पूछा, यहोवा मैं क्या करूं? अभी सामने जा नहीं सकता। सामने समुद्र है, पीछे फिरौन का दल आ रहा है, पीछे फिरौन का दल आ रहा है। दाहिने ओर ऊंचा पहाड़, वो बाईं ओर ऊंचा पहाड़। इस तरफ भी जा नहीं सकता है, इधर भी जा नहीं सकता है। पीछे फिरौन का दल आ रहा है, आगे समुद्र है, कहीं भी जा नहीं सकता है। 4 तरफ पे बंद है। इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु हम क्या कर सकते हैं? उस समय मूसा, हे प्रभु दया कीजिए, अभी हम जंगल में आ गए हैं। है वो फिर उनका शत्रु लोग पीछे आ रहे हैं, हमको जंगल में सत्यानाश करने के लिए, हमको मारने के लिए आ रहे हैं। प्रभु दया कीजिए हमको। मूसा चिल्लाने लगा। परमेश्वर का आवाज, एक आवाज आया, आपका हाथों में क्या है? लाठी है। उस लाठी को बढ़ाओ, समुद्र को और बढ़ाओ। बढ़ाया, समुद्र से 2 भाग हो गया। हालेलुया! कितना आश्चर्य काम देखा। समुद्र 2 भाग हो गया। समुद्र जैसा चलने के समान मार्ग बन गया। इस तरफ एक दीवार के समान खड़ा रहता है पानी, और इस तरफ भी बहुत बड़ा दीवार के समान रहता है। अभी लोग, परमेश्वर का लोग चल रहे हैं, समुद्र के ऊपर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। पीछे फिर उनका दल पीछा करके हार रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पीछे एक अग्नि, एक खंभा होकर परमेश्वर ने उनको रक्षा किया। फिर उनका दल नहीं आना चाहिए। वो अग्नि खंभा होकर परमेश्वर ने उनको रक्षा करने के कारण उन लोग आते 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 जब इस्राएल लोग उस समुद्र को पार किया, परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र को लेवल कर दिया। अभी शत्रु लोग कहाँ हो गए हैं? समुद्र में मार गए। कोई भी बचा नहीं, कोई भी बचा नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह को आपका संकट के समय में, मुसीबत के समय में, दुखों के समय में, जब आप बीमार में रहेंगे, उस समय में भी, हे प्रभु
मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे इतना कष्ट है, इतना तकलीफ है। आपका परेशानी का आप बोलने से प्रभु यीशु आपका आवाज को सुनेगा, आपका शब्द को सुनेगा, आपका जो कुछ परेशानी होने दो, जरूर प्रभु यीशु आपको मुक्ति देगा जी। देखिए इस्राएल लोग जब पुकारे थे, उन लोग पार हो गए। पार होने के बाद अभी भी देखिए आपका मालिक ने जो बोल रहा था, वो झाड़ी, जंगल का झाड़ी जल रहा था, लेकिन वो पश्चिम नहीं हो रहा है। अभी 4000 साल हो गया, अभी भी उस काटा का पेड़ को वो एक उस देश में संभाल के रखा है। सारे टूरिस्ट जो लोग वहाँ पर देख रहे हैं, आ रहे हैं, अभी भी है, ये झूठ नहीं है, अभी भी है। और देखिए, और समुद्र को पार होने के बाद जो अपने लोग पानी नहीं है, कम से कम 30 लाख लोग थे, 30 लाख लोग अभी गए, पानी नहीं है, अभी पीने के लिए पानी नहीं है। अभी मूसा से चिल्ला रहे हैं लोग, क्यों जंगल में मारने के लिए लेकर आया, क्या पानी नहीं दे रहे, हम इतना प्यास में तड़प रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, क्या बात है। तुरंत उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं क्या करूं। मूसा तुरंत क्या बोलेगा, घुटना टेके प्रभु से बोलेगा, हे प्रभु लोग पानी देना, मैं अभी क्या करूं। तुरंत यहोवा ने बोला, आपके पास लाठी है ना, लाठी, उस लाठी को ले जाओ, वहां पर एक चट्टान है, एक चट्टान है, उस चट्टान को मारो, पानी निकलेगा। तुरंत यहोवा का बातों को मान के परमेश्वर का मूसा ने क्या किया, अपना लाठी लेके मारा, पानी निकल कर आया। चट्टान पे पानी आएगा क्या, नहीं आएगा। जंगल, बहुत बड़ा जंगल बोलने से आपको राजस्थान में, हमारे भारत देश में राजस्थान में जाने से आप देख सकते हैं, उसी प्रकार जंगल वहां पर है। बहुत एक पेड़ भी नहीं रहेगा, छाया में टेकने के लिए पेड़ भी नहीं रहेगा, इतना जंगल, इतना धूप रहेगा। लेकिन अपना परमेश्वर अपने लोगों को धूप नहीं होने के लिए बादल का खंभा होकर उनको रक्षा किया। हालेलुया। एक बादल, धूप नहीं हुआ, बादल था, लेकिन पानी के प्यास, पानी के प्यास। लेकिन जब पानी के प्यास था, उनको पानी भी बुझा दिया, प्यास बुझा दिया। हालेलुया। और भी बोलने से, एक एक बात बोलने से बहुत बात है, लेकिन आखिरी में परमेश्वर ने उनको, मूसा का जीवन को ले लिया। उसके बाद अपना लोगों को चलाने के लिए एक परमेश्वर के दासों को नियुक्त करके, जोशुआ को नियुक्त करके उसको ले लिया। लेकिन पवित्र शास्त्र में एक ही मनुष्य को परमेश्वर ने, उसका मुर्दा को, उसका डेड बॉडी को परमेश्वर ने काढ़ा है। और कोई इंसान का जो बॉडी, जो मुर्दा को कोई परमेश्वर दफनाई नहीं किया। एक ही मनुष्य मूसा को परमेश्वर ने आखिरी में अपना हाथ से उसको ले जाके उनको थपना किया। अब तक कोई भी उसका थपना जो कब्रिस्तान को देख नहीं सकता है, कोई भी देख नहीं सकता। अभी भी कहाँ है पता नहीं चलता। पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम जानते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पवित्र वचन सत्य है, ये झूठ नहीं बोलता, ये सत्य है। इसको पढ़िए, ये सब पूरा आपको सिखाएगा, आपको शांति देगा, आपको मन में छुटकारा देगा, आपको आशीष करेगा। हम आंखों को बंद करेंगे, छोटा से छोटा प्रार्थना हम करके समाप्त करेंगे। उसके बाद आखिरी में हमारा बड़े पास्टर जो है वो समाप्त करेंगे। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान प्रभु अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। अप्पा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके लिए कुछ भी काम कठिन है राजा। जब अपना लोग मिस्र देश में रहते वक्त चिल्ला रहे थे, हे प्रभु हमको छुड़ा, आपने उनका प्रार्थना को सुनकर उनको छुड़ाया, उनको रक्षा किया। परमेश्वर मूसा का द्वारा बड़े बड़े काम किया। आपको धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, इस वचन को सुने हुए हप्पा हप्पा आपका लोगों को आपका हाथों में हम सौंप देते राजा। यीशु के नाम से एक वचन भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपका वचन जीवित वचन है, वो सामर्थ्य का वचन है। इस वचन का द्वारा हर एक लोगों को छू लीजिए परमेश्वर, वो हर एक लोगों को छू लीजिए। उनके जीवन में एक परिवर्तन होने दो। एक जीवन में यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर बोल के कबूल करने के लिए अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। अप्पा अप्पा धनी सवर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बिजनेस के लिए, उनका होटल के लिए अप्पा सबको प्रार्थना करते हैं राजा। उनका आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका अप्पा अप्पा इस ईटा का इसमें यहाँ पर काम करने वाले सबको नाम सबको हाथों में सौंप देते हैं। होटल में काम करने वाले सबको नाम से आपका हाथों में सौंप देते हैं राजा। सबको आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। गाड़ी का हर एक ड्राइवर लोगों को आपका हाथों में सौंप देते हैं। सभी लोग प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु सच्चाई से मालिक को आंखें मानते हुए काम करने के लिए प्रभु मदद कर, अनुग्रह कर। आपका नाम महिमा कर। नासर यीशु के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।